Hello people, welcome to my new video. Today the video is about grade 10th trigonometry. So many students are facing problem in trigonometry nowadays, and it's quite a new chapter. You're going to learn it from the starting point. And today I'm going to tell you all the formulas which we are going to use in trigonometry. And if the time remains, I'll also tell you about some of the formulas which we are going to use from polynomials also. Okay, so without a further ado, let's start the chapter. So name of the chapter is trigonometry. We all know this is grade 10th again, I'm saying, and this is chapter 8. Trigonometry. Okay, so let's start trigonometry. So there are some angles which we use in trigonometry. They are about 6 angles which we generally study while studying trigonometry. The first is sine, which we say sine. Then there is cosine, which we say cos. There is secant, which we say sec. There is cosecant, which we say cosec. Then there is tangent, which we say tan. And then there is cotangent, which we say cot. These are 6 basic angles generally which we use in trigonometry while solving all the sums, and we'll study about their properties, how they are interrelated, and different things. Before that, let's draw a triangle. Talking about the angles, let's first name the triangle. So my triangle always goes like this: A, B, C. Okay, and then I'm naming 2 angles over here, 2 important angles over here. Let's name this as phi. Let's name this as theta. These are Greek letters, Greek alphabets, which we generally use over here. So this is phi and this is theta. Okay. Second part is, if we normally see, then this is our base, this is our perpendicular, and this is our hypotenuse. Okay, I'll write it properly, don't you worry. So if I talk about triangle ABC over here, in triangle ABC, right angled at B, right angled at B. So over here we'll see that there are 2 angles, phi and theta. So by taking one of the angles as base, we are going to write the identities. Okay. So if theta, angle theta is our what will we say the proper word? If theta is angle of, let's say, concern, then BC is base, AB is perpendicular, and AC is hypotenuse, because then the diagram will be same as it is. But if we change the angle, like in triangle ABC, if angle phi is of concern, then your base will be AB.
AB becomes base. BC will be perpendicular. AC is hypotenuse. दैट मीन्स जो डायग्राम है ना बच्चों वो भी चेंज होगा. जो डायग्राम है डायग्राम में भी एक डिफरेंस आएगा. डायग्राम में क्या चेंज आएगा? बी एज इट इज रहेगा. बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट सी ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मेन एंगल यहाँ पे है वो क्या है? फाई. और यहाँ पे क्या था? थीटा था. थोड़ा कंफ्यूजन है बट मैं जिस वे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो लर्न करने में थोड़ा इजी है. नहीं तो ये लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. सो जो नॉर्मल क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज के जो फॉर्मूलाज जाते हैं वो फॉर्मूलाज ऐसे जाते हैं दैट अगर मैं थीटा लेता हूं एंगल, सो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब क्या होगा? सॉरी, AB अपॉन AC, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिर अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो वो होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. यानी ये क्या हो जाएगा? BC बाय AC या फिर B बाय H. और अगर मैं tan थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड. तो यहां पे जब मैं ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड लिख रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स. ओके, एडजेसेंट साइड. यानी ये क्या हो जाएगा? AB बाय BC यानी परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके. सो अगर आप लोगों को ऐसे याद करना है P बाय H, B बाय H, P बाय B, सो याद करने का एक बहुत इजी तरीका था जो हम लोग स्कूल में यूज करते थे. दैट इज प्रोफेसर बद्री प्रसाद हर हर भोले. ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. प्रोफेसर बद्री प्रसाद हर हर भोले. This is sine, this is cos, this is tan. Okay? Professor Badri Prasad हर हर भोले. That is P by H, B by H, P by B, sine, cos and tan. यहाँ पे अगर हम बात करें अभी यहाँ पे अगर हम अभी बात करें साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया. सो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सैक की, कोसेक की और कॉट की. तो सैक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. मतलब कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज था AC और एडजेसेंट साइड था BC. यानी ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B. बात करें कोसेक थीटा की, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. ये हो जाएगा AC अपॉन AB यानी H अपॉन P. और लास्ट में है
कॉट थीटा, मैं कोटेंजेंट पूरा लिखने वाला था, लेट्स राइट कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ये क्या होता है, ये आप अगर देखेंगे, so this is your adjacent side and this is your opposite side, so that is BC by AB, यानी कि B by P। so बेसिक एंगल्स जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ओके यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है दैट साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा होगा बेस अपॉन आई एम सो सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये आपके फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। याद रखिएगा, जब फाई होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जब हम यहाँ पे फाई यूज करेंगे तो फाई के साथ एंगल्स चेंज हो जाएंगे। अगर फाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन, साइन ए बी बाई ए सी था यहाँ की वजह से, बट जब हम साइन को फाई कर देंगे तो ये ए बी बाई बी सी की जगह हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ये आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है। जो सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है एंड वो इसी से डराइव होता है, इट्स वेरी इजी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, फिर सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सेम गोज विथ कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, इसी वजह से यहां पे भी वैल्यूज चेंज होंगी। यहां पे टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, एंड कॉट थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो थर्ड सेट ऑफ गाइस, सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज है। ओके, ये है सेकेंड सेट। ओके, बात करते हैं थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज की। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो सबने अलग अलग तरीकों से याद किया होगा। अब जिसको नहीं याद हो रहा है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका नहीं बताने वाला हूं, मैं भी इन्हीं में से एक तरीका बताने वाला हूं जो ऑलरेडी आपने अपने फ्रेंड से या स्कूल में आपके टीचर्स से या ट्यूशन टीचर्स से आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ओके, सबसे पहले यहां ऊपर एंगल लिख देते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। क्यों? साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मेरा एंगल ही 0 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 0, इसीलिए साइन क्या होगा, p बाई एच क्या होगा, 0। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन 30 होगा हाफ, साइन 45 होगा 1 बाय रूट 2, साइन 60 होगा रूट 3 बाय 2, और साइन 90 होगा 1। ओके, ये आपका फर्स्ट टेबल है और उसकी वैल्यूज ऐसी हैं। ऑलराइट, अभी कॉस क्या होगा, हम उल्टा
पूरा लिख देंगे वो कॉस हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ओके, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस करते हैं तो tan होता है। हाँ, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा 1/√3, 1/√2/1/√2 क्या होगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और 1/0 क्या होगा, ये होगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर आप कहीं पे इंफिनिटी का भी सिंबल देखो तो वो भी करेक्ट है। ओके, कॉट एकदम इसके ऑपोजिट हो जाता है, वो हो जाता है अनडिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0। ऑलराइट, फिर बात करते हैं सैक की। सैक क्या है, सैक उल्टा है किससे, कॉस से, तो 1 का क्या होगा 1, और ऑलराइट अभी sec क्या होगा 1, क्योंकि 1/1 क्या होता है 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये होगा 1/0 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कोसेक सेक का उल्टा होता है, एज इट इज √3 2 √2 2/√3 और 1। ये बच्चों ये है क्या, ये है आपका थर्ड सेट। ये क्या है, ये है थर्ड सेट। थर्ड सेट के फॉर्मूलाज आपके सामने ये रहे, मैं इसको थोड़ा सेंटर कर देता हूं। ओके, ये टेबल है पूरा, टेबल याद कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लो। एंड अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो ये याद रखो कि 90 पे साइन सबसे ज्यादा होता है, 0 पे साइन सबसे छोटा होता है। सो 0 to 1 की वैल्यू हम आराम से ऐसे लर्न कर लेंगे, एंड जो बाकी वैल्यूज हैं वो उस हिसाब से हम लिख देंगे। कॉस इसका उल्टा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan मिल जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, एज इट इज आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा sec, हाँ, और जो sec लिखा है हमने उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ सेट, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोगों के यहीं पे कटते हैं। फोर्थ सेट का एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहां से कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ये मेन फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूले के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं साइन से। यप, सो कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ओके, सो अब आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे आप ध्यान से देखो कि साइन अपॉन कॉस क्या था। अच्छा, इसमें साइन अपॉन कॉस है ही नहीं, कॉस अपॉन साइन क्या था, कॉस अपॉन साइन है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन बाई साइन क्या हो जाएगा 1, यहां 1 लिख लेते हैं, इक्वल्स 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, ये देखो आपके सामने 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें भी कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और कोसेक दिया ही है, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यप, जैसे हमने ये किया वैसे ही tan के फॉर्मूलाज आएंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं,
कि sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये हमें अप्लाई करना है लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्थ सेट। ओके, मैंने पॉज किया है, जिसको भी कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है। इसके बाद जो फॉर्मूलाज मैं लिखवाने वाला हूं, ये फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं। आपने ऑलरेडी 8th में पढ़ लिए हैं, 9th में थोड़े बहुत डेराइव किए थे। इसका यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता हूं आपको यूज करते टाइम कोई भी कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैं नहीं लिखवाता तो भी चलता, बट ओनली फॉर योर सेक मैं आप लोगों को ये भी लिखवा देता हूं। दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a क्यूब लिख दिया है मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, फिर a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, इसके अलावा एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ओके, ये फॉर्मूलाज थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज किए, दैट इज दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज आवर सेकेंड सेट, थोड़ा और ऊपर, दिस इज आवर सेकेंड सेट, द टेबल इज आवर थर्ड सेट, दिस इज आवर फोर्थ सेट, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, एंड दिस इज आवर formulas which we are going to use in the last exercise. Okay, so thank you for watching, stay tuned.